students, welcome to my channel Learn, Grow and Rise. In today's session, we will discuss tips and tricks to learn radical. Please watch my video till the end to get interesting tricks to learn radicals. Let's start. In radical, we will focus on definition of radical, difference between radical and compound, formation of radical, representation of radical, classifications of radical, calculation of charge on radical, IUPAC nomenclature of radical, and more interestingly, we will read few tips and tricks of radical. Most of the time my students asked me how they will learn the formula and the charge of the radical easily. So today I am going to discuss very few and simple tips and tricks to learn radical easily. Let's watch. Radical is defined as atom or group of atoms of same or different elements combined chemically behave as a single unit with a positive or negative charge on it. रेडिकल क्या होता है? एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, सेम एलिमेंट का भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट का भी हो सकता है. जब ये कंबाइन होते हैं दे बिहेव एज अ सिंगल यूनिट, एक यूनिट के तरह बिहेव करते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? नाउ लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स. कार्बोनेट में कार्बन का एटम है एंड ऑक्सीजन का एटम है एंड उसके ऊपर क्या है? चार्ज भी है -2. सो इट इज अ रेडिकल. नाउ हाइड्रोनियम आयन पर हाइड्रोजन का एटम भी है एंड यो किसका एटम है? ऑक्सीजन का एटम है. 3 हाइड्रोजन का एटम है एंड 1 ऑक्सीजन का एटम है एंड पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर. सो इट इज अ रेडिकल. नाउ कंसिडर द क्लोराइड. इन क्लोराइड Cl- ये एक सेम एलिमेंट का एक सिंगल एटम है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है. सो इट इज अ रेडिकल. द कंपाउंड also have the similar definition as radical. But let's find out what is the difference between the radical and the compound. Compound is defined as atom or group of atoms of same or different element combined chemically, behave as a single combined chemically and behave as a single unit without any charge on it. So compound क्या होता है? कंपाउंड कैसे डिफाइंड होता है? कंपाउंड डिफाइन होता है कि ये भी एक एलिमेंट या कितना एलिमेंट, ये आइदर इट इज सिंगल एलिमेंट हो सकता है या ग्रुप ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है जो केमिकली कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट के तरह बिहेव करता है, बट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. So this is the difference between your compound and radical. Compound में क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन रेडिकल में क्या होता है? चार्ज होता है. दोनों सेम एलिमेंट का एटम से बन सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट का एटम से बन सकते हैं, लेकिन रेडिकल के ऊपर चार्ज होना जरूरी है बट कंपाउंड के ऊपर चार्ज नहीं होता है. So this is the difference between your compound and radical. Now let's see how the radicals are formed. Radicals can be formed by two methods. पहला मेथड क्या है? अगर एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पॉजिटिव रेडिकल बनता है. कैसे? से फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ द सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11. उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 281 है. So, अगर sodium atom want to become a stable atom, or we can say to want to become happy, so it definitely lose its 1 electron. So sodium atom will form sodium radical or Na plus and उसका configuration 2 और 8 होगा. Is it clear? So अभी सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन और रेडिकल फॉर्मेशन किया.
So when an atom lose electron, it form a positive radical. Is it clear, children? Like this, when calcium atom wants to loses 2 electrons, it will form what? Your calcium ion or calcium radical, Ca+2. सेकेंड मेथड क्या है रेडिकल फॉर्मेशन का? एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इट विल फॉर्म द नेगेटिव रेडिकल. इज इट क्लियर? एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्म करता है? नेगेटिव रेडिकल फॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल, विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ द क्लोरीन. Okay, we'll take the example of what? We'll take the example of chlorine. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है. उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 287. Children, if you have any doubt regarding to the electronic configuration and the valency, so please go to my previous video where I have given the lecture on valency. I will give the link in my description box. So क्लोरीन एटम का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है. So if want to become stable, it definitely what? It will gain 1 electron. If it will gain 1 electron, so what should be the configuration? It will become Cl minus and the configuration is 288. Okay, so now chlorine atom become the chlorine radical, Cl minus. So this is the way how the radicals are formed. Now let us discuss how can we represent the radical. A radical is represented by writing its formula and putting its charge equal to its valency on the right hand top. हम रेडिकल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रेडिकल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पुटिंग इट्स वैलेंसी, उसका वैलेंसी को पुट करके. कहाँ पर पुट करते हैं? राइट हैंड साइड में टॉप में पुट करके. सपोज कार्बोनेट का वैलेंसी कितना है? कार्बोनेट का वैलेंसी -2 है. सो वेयर वी विल राइट दिस -2. ये -2 को हम लोग कहाँ पर लिखेंगे? उसका राइट हैंड टॉप पर हम लोग -2 को लिख सकते हैं. सपोज वी कैन सी द PO4 फॉस्फेट. फॉस्फेट का चार्ज कितना है? इसका चार्ज है -3. वेयर विल राइट? विल राइट इट ऑन द राइट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड विल राइट इट राइट हैंड टॉप of the when we are writing the formula. Is it clear? This is the way how we will represent the radical. Now let's see or let's read the classification of the radical. रेडिकल का क्लासिफिकेशन टू वे में हो सकता है. कैसे कैसे? पहला बात यह है कि हम लोग इसका क्लासिफिकेशन उसका नेचर ऑफ चार्ज, उसके ऊपर जो चार्ज है उसका नेचर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? उसका ऊपर में जो चार्ज है उसका चार्ज के ऊपर से हम लोग डिपेंड करके रेडिकल को 2 तरह का करते हैं. क्योंकि 2 टाइप का चार्ज होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तो नेगेटिव चार्ज होता है. अगर किसी रेडिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बोल सकते हैं, उसको बेसिक रेडिकल्स बोल सकते हैं, उसको कैटायंस भी बोल सकते हैं, जैसे कि Na+, Mg+2, NH4+ एटसेट्रा. जब कोई रेडिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है हम उसको क्या बोल सकते हैं? हम उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल बोल सकते हैं, एसिडिक रेडिकल बोल सकते हैं और एनायन भी बोल सकते हैं. तो जैसे कि एग्जांपल Cl-, CO3-2, PO4-3 एटसेट्रा. ये क्लासिफिकेशन हुआ उसके नेचर ऑफ द चार्ज के ऊपर डिपेंड करके. अगर हम उसका नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नॉट नंबर टाइप्स ऑफ एटम्स के ऊपर से उसका डिपेंड करके उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो रेडिकल 2 तरह का होता है. क्या क्या होता है? एक तो सिंपल रेडिकल होता है और एक तो कंपाउंड रेडिकल होता है. सिंपल रेडिकल को हम क्या बोलते हैं? हम इसको मोनोएटॉमिक रेडिकल बोल सकते हैं एंड योर कंपाउंड रेडिकल को हम पॉलीएटॉमिक बोल सकते हैं. नाम से पता चलता है मोनो में सिंगल. अगर कोई सिंगल एलिमेंट का और सिंगल वन एलिमेंट का एटम और एटम्स, एक सिंगल एटम और मेनी एटम्स रेडिकल फॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम
सिंपल रेडिकल बोल सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, अगर कोई रेडिकल डिफरेंट एलिमेंट का एटम से बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको कंपाउंड रेडिकल बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इज योर CO3 माइनस, SO4 माइनस 2 एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ लेट अस नो हाउ टू कैलकुलेट चार्ज ऑन ए रेडिकल। रेडिकल का चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेडिकल का चार्ज हम जितना एटम से उसका वैलेंसी का समेशन लेके कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बोनेट, कार्बोनेट में क्या होता है, कार्बोनेट में कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। जनरली जो एलिमेंट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और उसका वैलेंसी हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। जैसे कि कार्बन, कार्बन का वैलेंसी +4 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 ठो एटम है, इनटू कितना है -2, क्योंकि 1 ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, -1 एटम का वैलेंसी -2 होता है, तो -6, सो इट इज +4, सो +4 -6 it will become -2. So you will also you will see that we have written already the charge is your -2. Now let's see the phosphate. फॉस्फेट में फास्फोरस के ऊपर में वैलेंसी हमेशा कितना होता है, वैलेंसी इसका +5 होता है। फास्फोरस का वैलेंसी कितना होगा, फास्फोरस का वैलेंसी +5 होगा। और ऑक्सीजन कितना एटम है, 4 एटम है, 4 इंटू -2 कितना होगा, सो इज इक्वल टू +5 +5 -8 is equal to -3. Is it clear? Now consider the हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन का कितना होता है एटम, हाइड्रोजन का यो वैलेंसी कितना होता है, +1 होता है। सो 3 इंटू +1, 3 इंटू +1 कितना हुआ, +3 प्लस -2 is equal to कितना हुआ, +1. So this is the way we can calculate the charge on a radical. Is it clear? I think it is clear. All of you understood it. It is in a better way. So now let's discuss the IPSC nomenclature of radical. According to the IPSC or International Union of Applied Chemistry, we use suffix ATE, IDE, ITE are used in the name of the anions, and suffix IUN is used in the name of the cations. जैसे कि SO4-2 anion है, it is sulfate ended with suffix ATE. Is it clear? Suppose like this Na plus is a what? It is a positive radical or it is a cation. So what is the name of it? It is sodium, IUM. It is ended with the IUM. Is it clear? So this is the method to write the IPSC nomenclature of the radical. Now let's start the most weighting tips and tricks for remembering the formula and the valency of the radical. Okay, let's see first. N-3 क्या होता है, नाइट्राइड. I have told that अगर ये anion होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल होता है, it must be ended with the IDE. NO2 माइनस को नाइट्राइड बोलते हैं, NO3 माइनस को नाइट्रेट बोलते हैं. What is the trick? IDE always used in a monoatomic radical without oxygen. So S-2 क्या होगा? Definitely it is
सल्फाइड होगा। ओके, देन NO3 minus is nitrate ATE and NO2 minus is nitrite. If it is a single oxygen atom less, then we will use the suffix ITE. अभी SO4 minus atom क्या होगा बच्चों? It is definitely sulfate होगा। उससे एक एटम कम, so ये क्या होगा? It is सल्फाइड होगा। है ना आसान बच्चों? So you do one thing, फटाफट आपका मोबाइल से मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए P-3 का नाम क्या है, PO3-3 का नाम क्या है एंड PO4-3 का नाम क्या है। Let me see how many of you are watching my video and understanding the concept very clearly. Is it clear? I am waiting for your comment बच्चों। Now second trick में as I have told you, Cl minus, it is a monoatomic radical, lacks of oxygen. So what should the suffix we will use? We will use the suffix IDE. So Cl minus is chloride. Now ClO3 minus क्या होगा? क्लोरेट होगा। उससे वन एटम ऑक्सीजन कम, ClO2 माइनस क्या होगा? वो क्लोराइड ITE होगा। Now there is a trick. What is the trick? Prefix hypo is used कब हम हाइपो यूज करते हैं? जब वन ऑक्सीजन एटम लेस होता है ITE से। ओके, सो हम हाइपो कब यूज करते हैं? जब एक ऑक्सीजन एटम लेस होता है ITE से। यहाँ पर देखो हम लोग क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? इट इज ClO2 माइनस। उससे एक ऑक्सीजन कम होने से हम इसका नाम क्या लिखते हैं? हम इसको हाइपोक्लोराइट लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं इसका नाम? इसका नाम लिखते हैं हाइपोक्लोराइट। सो हाइपो प्रीफिक्स कब यूज होता है? जब वन ऑक्सीजन लेस होता है। जब वन ऑक्सीजन मोर होता है क्लोरेट से, तब हम क्या लिखते हैं? पर लिखते हैं। इज इट क्लियर? सो पर prefix is used when one oxygen is more. It is क्लोरेट का होता है ClO3 माइनस। जब वन ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गया तो उसका नाम क्या है? पर क्लोरेट। सो लाइक दिस यू जस्ट टेल मी Br माइनस क्या होगा इसका नाम? इसका नाम ऑफ कोर्स इट इज ब्रोमाइड IDE। सो BrO3 माइनस का क्या होगा? BrO3 माइनस का होगा ब्रोमेट। इससे एक ऑक्सीजन लेस तो क्या होगा? इट इज ब्रोमाइड। इससे एक ऑक्सीजन लेस तो क्या होगा? ये हाइपोब्रोमाइड। इज इट क्लियर? हाइपोब्रोमाइड। सो क्लोरीन से एक ऑक्सीजन ज्यादा तो क्या होगा? इट इज पर ब्रोमेट। सॉरी, ब्रोमेट से वन ऑक्सीजन मोर, सो क्या होगा? पर ब्रोमेट। ओके, सो दिस इज द ट्रिक यू नीड टू रिमेम्बर so that you will be never confused in this formula and the name of the radical. Please write down all the formula of this I minus, IO minus, IO2 minus, IO3 minus, IO4 minus radical in your notebook. Is it clear? Now the next memory trick I am just telling you. The memory trick is that we use the thio. Thio हम कब यूज करते हैं? It is always associate with the sulfur. Cn minus cyanide होता है जब सल्फर SCN माइनस होता है तो हम thiocyanide बोलते हैं। Now let's see another trick. What is that? CO3 minus 2 कार्बोनेट होता है। जब वन हाइड्रोजन ऐड होता है हम उसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। SO4 minus 2 सल्फेट होता है। जब वन हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं तो क्या होगा बच्चों? हाँ, एग्जैक्टली, इट इज हाइड्रोजन सल्फेट होगा। नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा हाइड्रोजन सल्फेट। जब और
वन ऑक्सीजन लेस होगा तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा योर हाइड्रोजन सल्फाइड, और you may say bisulfite ITE. Now, like this, in the comment section, please write the answer of the what is the name of the HPO4 minus 2 and what is the name of the H2PO4 minus. H2PO4 minus PO4 माइनस 3 को हम फॉस्फेट बोलते हैं. HPO4 माइनस 2 को क्या बोलेंगे? इट इज हाइड्रोजन फॉस्फेट. जब और एक तो हाइड्रोजन ऐड होता है तब हम उसको क्या बोलेंगे? डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट. CrO4 माइनस 2 को हम क्रोमेट बोलते हैं. Cr2O7 माइनस 2 को हम क्या बोलेंगे? जब दो क्रोमियम एटम होगा तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तब उसको हम बोलेंगे डाई क्रोमेट, क्योंकि दो क्रोमियम एटम है. So, hope that all of you enjoy the tips and tricks and you use it while naming the radicals. So, all of you like this tips and tricks. For this 100 likes तो बनता है children. Let me watch how many likes this time I am getting. If you want to keep chemistry in your tip of the tongue, so please subscribe, like, comment and share and hit the bell icon quickly so that you will get the notification first when I upload any video. You can follow me in the Twitter and Instagram. Till then, bye bye children. Take care. Thank you.